کیا ہوا؟ جب کربلا پہنچے تو پوری طرح سے ان کو روک دیا گیا، وہاں سے بالکل آگے بڑھنے سے ان کو منع کر دیا گیا کہ اب یہاں سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ جانتے ہیں کربلا جو جگہ ہے وہ مکہ سے کوفہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ مکہ سے شام کے راستے میں، یعنی مکہ بنو امیہ اس کو لے کر کافی جو ہے کافی اس کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند تھے. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی اور کو قبول کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ تو ملوکیت کا مسئلہ ہو گیا نا، تو بادشاہوں کا مسئلہ ہو گیا. یہ باقاعدہ بعض روایتوں میں صحیح سند سے موجود بھی ہے کہ باقاعدہ تشبیہ دی گئی کہ تو قیصر و کسریٰ والا دستور نکل آیا کہ باپ کے بعد بیٹا بن جائے گا. تو اس آئین سے اختلاف کیا تھا. یعنی اعتراض بعض لوگ کیا اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید سے افضل جب موجود ہے تو یزید کو کیوں بنا دیا؟ بھائی یہ بنیاد. البتہ ایک صحیح روایت ملتی ہے طبرانی کی، مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ جب مکہ پہنچتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے پاس بہت سارے ان کو یہ اشارہ ملتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو کہ ہماری شخصیت کو لے کر، ہماری ذات کو لے کر کسی طرح کا کوئی خون خرابہ ہو سکتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ اسلام کا واسطہ دیا اور کہا کہ انہیں امیر المومنین کے پاس یعنی یزید کے پاس جانے دیں، وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، کربلا کا جو واقعہ ہے تو اس کے تعلق سے تاریخی روایات میں جو کچھ ملتا ہے اور بعض صحیح سندوں سے جو روایتیں ثابت ہیں ان میں جو ملتا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات رکھ دوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ہی واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تفتیش کرو. ہاں، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ہو سکتا ہے کہ نادانی میں کسی گروہ کو یا کچھ لوگوں کو تم لوگ متون کر دو یا اس پہ کوئی الزام لگا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں اپنے اس کام پہ ندامت ہو، افسوس ہو کہ ایسا تم نے کیوں کیا. تو اللہ رب العالمین نے جو یہ اصول دیا ہے نا کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، کوئی فاسق فاجر خبر لائے تو اس کی تفتیش، اس کی تحقیق بہت ضروری ہے. تو یہ جو قرآن کا اصول ہے اسے ہمیں ہر جگہ اپلائی کرنا ہے، آج اپنی زندگی میں بھی اور ہم سے پہلے جو واقعات ہوئی ہے وہاں پہ بھی اور ہر جگہ. اور یہ جو واقعہ ہے، واقعہ کربلا ہے، اس کے جو روات ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے والے جو روات ہیں ان کی اکثریت جو ہے فاسق فاجر لوگوں کی ہے. ان کی اکثریت آپ دیکھیں گے محدثین ان کو کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے. ہاں، اور ان پر بہت بڑی بڑی جرح ان پر کی گئی ہے محدثین کی طرف سے. لہذا وہ اگر ایسی باتیں لاتے ہیں، اس تعلق سے اپنے بیانات دیتے ہیں تو اس کی تحقیق کرنا، اس کی تفتیش کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو احادیث کی تحقیق تفتیش ہوتی ہے نا، تو اس میں بطور دلیل یہ آیت پیش کی جاتی ہے. یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے احادیث کی بھی تحقیق بہت ضروری ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ اصل جو حکم ہے قرآن میں، یقیناً اس کے روح سے احادیث کی بھی تحقیق ضروری ہے، لیکن اصل حکم خبروں کے بارے میں، اصل حکم اسی طرح کی خبروں کے بارے میں، کس طرح کی خبریں نیوز اگر پھیلائی جائیں تو ان کی تحقیق بہت ضروری ہے. یہ پہلی اصولی بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی روایات سے متعلق بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تساہل کی گنجائش ہے، یعنی تاریخی روایات کی تحقیق میں وہ معیار اپنانا درست نہیں ہے جو معیار احادیث کی تحقیق میں اپنایا جاتا ہے. میرے بھائیو، یہ بات الاطلاق درست نہیں ہے. اگر تاریخی واقعات کا تعلق کسی شخصیت کے فضائل سے ہو اور کسی ایسے واقعے سے ہو یا کسی ایسے واقعے کی کسی ایسے حصے سے ہو، ایسی بات سے ہو جو بات دوسرے ثابت شدہ حقائق واقعات کے خلاف نہ ہو، جس میں کسی جو ہے مسلمہ شخصیت پر کوئی الزام نہ لگتا ہو، کسی مسلمان پر کوئی بہتان، کوئی
गुनाह का इल्ज़ाम न लगता हो, तो ऐसी रवायत के बारे में ये बात कही जा सकती है कि उसमें इतनी तहकीक की ज़रूरत नहीं है, उसे बयान करो। किसी के ताल्लुक से फजीलत की कोई बात है, अच्छी बात है, अगर उसकी सही सनद नहीं मिलती है तो उसको बयान करने में कोई मसला नहीं है। जिसे जो है हदीस है कि हदीसों हम बनी इसराइल वला हरज, बनो इसराइल से बयान कर सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो इसराइल से जो बयान करने की इजाज़त दी है, ये भी कहा ला तुसद्दिकुहुम वला तुकद्दिबुहुम, ना उनकी तस्दीक करो ना उनकी तकज़ीब करो। यानी ऐसे ही बयान करने के तौर पर, ऐसे ही यानी जब उसमें उसके बयान करने में तसाहुल है तो उस पर हुक्म लगाने में भी आप कोई कतईयत का रंग नहीं दे सकते। जैसे तारीखी बनो इसराइल की रवायत को बयान करने के लिए कहा हदीस में, लेकिन आप उसे कतईयत का रंग नहीं दे सकते उसको बयान करते हुए कि ये जो बयान किया जा रहा है ये सच है या झूठ है, आपको उसको खुद इख्तियार करना है। लेकिन अगर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने मुक़द्दमा फ़ी उसूल तफसीर में बड़ी अच्छी वज़ाहत की है कि अगर ये इसराइली रवायात कुरान से टकरा जाए और कुरान उसके बरखिलाफ बोले तो फिर इन इसराइली रवायत की तकज़ीब करना, इसको झुठलाना ज़रूरी है। कुरान कुछ कहे और इसराइली रवायत कुछ कहे तो जाहिर सी बात है कि हम कुरान को मानेंगे, इसराइली रवायत को नहीं मानेंगे। अब इससे कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, अब किसी इसराइली रवायत में मिलता है, कोई बयान करता है कि सूली दी गई, तो हम कैसे मानेंगे? उसको नहीं मानेंगे। पुरानी रवायत में से मिलता तो हम नहीं मानेंगे उसको। या मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से या और किसी भी ताल्लुक से कोई ऐसी बात मिलती है जो कुरान के खिलाफ हो तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये ज़हन में रखें कि जो लोग कहते हैं कि तारीखी रवायत में तसाहुल है, उसमें तहकीक का वो मेयार नहीं चाहिए, तो ये बात तब दुरुस्त होगी जब उन वाक़यात का ताल्लुक फ़ज़ाइल वगैरह से हो, उसमें किसी पे कोई इल्ज़ाम वगैरह ना हो। लेकिन जब बात हो किसी पे इल्ज़ाम की और ख़ास तौर से सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर इल्ज़ाम की बात हो, तो फिर तहकीक बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ साबित है कि नहीं है। तहकीक के बाद फिर उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है और पूरी सूरत हाल क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन बगैर तहकीक के आंख बंद करके हम उसे ऐसी कोई बात कबूल नहीं कर सकते जो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से जुड़ी हुई हो। और वाक़े करबला में कई मोड़ ऐसे आते हैं, कई बातें ऐसी आती हैं जिनका ताल्लुक सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से जुड़ता है, इसलिए उन वाक़यात की तहकीक बहुत ज़रूरी है। हम आंख बंद करके उन पर नहीं मान सकते। अच्छा, एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि तारीखी वाक़यात हैं, आंख बंद करके मान लो, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि तारीखी वाक़यात में मुतज़ाद बातें हैं, एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं। तो जब इनके सामने, तो ये लोग क्या करते हैं, इनके मन की जो बातें होती हैं उसको ले लेते हैं, और जब इनके मौक़िफ़ के खिलाफ तारीखी रवायात से कोई बात उठा के पेश की जाए तो फिर उसको तहकीक करने बैठ जाते हैं, उसको नहीं मानते। तो इस तरह से गाड़ी फंस जाएगी। इस तरह से आदमी एक किसी वाज़े मनहज पे नहीं रह पाएगा, अपने मन की बात उठाएगा तो उसे इस एक मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा। तो मौक़िफ़ यही है कि अगर मसला फ़ज़ाइल वगैरह के तो ठीक है, आप बयान कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मसला है किसी की किरदार कुशी का, किसी पर ऐब लगाने का, किसी को मजरूह करने का, तो फिर ये ज़रूरी हो जाएगा कि आप उसकी तहकीक करें। बल्कि वो दौर तो जाने दे मेरे भाइयों। आज के दौर में इतनी सदियां गुजरने के बाद अगर कोई किसी इंसान पर इल्ज़ाम लगा दे कि वो शराब पीता है, तो क्या इसको ऐसे मान लिया जाएगा? या शराब उससे भी हल्का कोई इल्ज़ाम लगा दे तो क्या उसकी तहकीक नहीं की जाएगी? क्या मान लिया जाएगा कि चलो भाई ये कोई हदीस थोड़ी है, आदमी कह रहा तो चलो कबूल कर लो? नहीं भाई, आज के दौर में किसी के बाप, किसी की माँ, किसी के भाई बहन पे कोई इल्ज़ाम लगाए, वो बगैर तहकीक के उसको नहीं मानेगा। है, उसको तारीखी बात कह के या न्यूज़ की बात कह के उसको इग्नोर नहीं करेगा, कि हल्के में नहीं लेगा। तो बताइए, साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मुतल्लिक जो बातें हैं, उनको हम ऐसे हल्के में कैसे ले सकते हैं? उनकी तहकीक क्यों नहीं करेंगे? उनकी तफ्तीश क्यों नहीं करेंगे? तो ये एक उसूली बात है, ज़हन में रखें कि जो कहा जाता है ना तारीखी रवायत में तसाहुल है, तो उससे मुराद ये है कि जब फ़ज़ाइल वगैरह की बातें हो तो, लेकिन जब बात आएगी किसी की किरदार से मुतल्लिक और किसी पे इल्ज़ाम से मुतल्लिक, तो खुल के उनकी तहकीक की जाएगी, उन रवायत को रद्द किया जाएगा जो साबित ना हो इस सिलसिले की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त चला जाएगा, इसलिए मैं वाक़ई करबला से मतलब कुछ बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं बात अर्ज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम मसला जहाँ से वाक़ई करबला की शुरुआत होती है, वो है यज़ीद की वली अहदी का मसला। कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हयात में यज़ीद को नामज़द कर दिया कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद वो खलीफा बनेगा।
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کے سہارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تو وہ یہ جو ولی عہدی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بھی بنیاد بنا کے اس پہ بات کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگمانی پھیلائی جاتی ہے، اور پھر وہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں استغفر اللہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور بعض صحابہ سے متعلق کہ ان لوگوں نے کس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسا کے معاذ اللہ، اور اس طرح سے ان کے بیٹے کے حق میں وہ بات کر دی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے مفاد کے لیے ان کو اکسایا۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ لوگوں نے یعنی صحابہ نے معاذ اللہ صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف سازش کر کے معاذ اللہ، جیسا کہ روایتیں بتاتی ہیں، اور جیسا کہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں لکھ بھی ڈالا ہے اس طرح کی باتوں کو، کہ ایک بزرگ نے اپنے مفاد میں اور دوسرے بزرگ نے اپنے مفاد میں اس طرح سے امت کا سودا کر دیا، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی جو بدگمانی ہے نا یزید کی ولی عہدی کو لے کر، یہ بے بنیاد جھوٹی روایات پر مبنی ہے، صحیح روایات میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے بغیر کسی پختہ ثبوت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرنا اور اس طرح کی بدگمانی کرنا یہ درست نہیں ہے، ہرگز درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ ایک چیز ہے کہ یزید کا نام کیسے آیا، تو یہ جو جھوٹی روایتیں ہیں اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، بعض لوگ بہت زیادہ اس کو اچھالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تھی تو اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وفات پاتے ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے ہیں تو پھر یہ خلافت واپس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنی چاہیے۔ کہتے ہیں اسی بنیاد پر صلح ہوئی تھی، اسی بنیاد پر صلح ہوئی تھی، یعنی صلح کی یہ باقاعدہ شرط تھی، حالانکہ ایسا کسی بھی مستند اور صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔ کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں لیکن وہ صحت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ لیکن اگر چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جو ہے یہ روایتیں صحیح ہیں کہ شرط کے وقت یہ صلح کے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات ہوں گے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے کر دیں گے، معاویہ رضی اللہ کی وفات کے بعد خلافت ان کے حوالے ہوگی۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی وفات ہوگی تو اب اس پہ عمل کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ صلح کی شرط میں یہ تو نہیں تھا نا کہ ان کے خاندان میں یا اہل بیت کے خاندان میں خلافت دے دیں گے، بات صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ورنہ اگر یہ ماننے لگے کہ خاندان ہی میں رہے گی تب تو پھر دونوں طرف سے ایک بات ہے، جو الزام بنو امیہ پہ لگاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے خاندان میں حکومت کر لیا، تو پھر وہ تو اہل بیت کے تعلق سے بھی آئے گا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں حکومت رہے گی، جبکہ یہ کسی کی خاندان کا مسئلہ نہیں ہے۔ حالات اور ظروف کے لحاظ سے یہ طے ہوگا کہ کس کو یہ ذمہ داری سونپی دی جائے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ضروری تھا کہ وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت سونپتے، تو اس کا موقع نہیں آیا۔ پہلی بات تو روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک روایت تاریخ ابو زرع کی ہے، اس سے اس کی تردید بھی ہوتی ہے۔ تو جب ایسا موقع نہیں آیا تو اگر جو لوگ اس طرح کی روایتوں کو صحیح بھی مانتے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کی کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک اہم بات یہ بھی ہے، امام ابو زرع رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں صحیح سند سے واقعہ نقل کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کی حیات میں کہ آپ کے بعد خلافت کس کے پاس ہوگی، یعنی آپ کے بعد جو ہے یہ خلیفہ کون ہوگا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 6 لوگوں کا نام لیا، 6 لوگوں کا، کہا یہ 6 لوگ فیصلہ کریں گے، یعنی بالکل ویسے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میرے بعد یہ لوگ طے کریں گے کہ خلیفہ کون ہوگا، انہیں میں سے کوئی ہو جائے گا۔ تو ایسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سوال کے جو صحیح سند سے ثابت ہے جواب میں کہا کہ یہ 6 لوگ طے کریں گے کہ کون خلیفہ بنے گا۔ ان 6 لوگوں میں کون تھے؟ ان 6 لوگوں میں سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اور دوسرے لوگ تھے، اس میں 6 لوگ بہت اہم لوگ تھے وہ۔ اچھا اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو صلح والی بات ہے نا کہ صلح میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیں گے، تو یہ جو واقعہ ہے نا جس میں 6 لوگوں کا نام پیش کریں اس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح سند ثابت ہے، یہ صحیح روایت اس روایت کی تردید کر رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ اپنے بعد خلافت جو ہے
हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को सौंप देगा। अगर ऐसा तय हुआ होता तो फिर हसन रजी अल्लाह मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कमेटी क्यों बनाते? हसन रजी अल्लाह की हयात में ये कमेटी क्यों बनाते कि ये 6 लोग जो है उसको तय करेंगे। लेकिन बहरहाल इनमें जो अफराद थे उनमें भी बाज का इंतकाल हो गया, जैसे हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो फिर बाद में आखिर में आगे जिंदगी के आखिरी मरहले में मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर ये उनकी जो सियासी बसीरत थी, उनका जो जिंदगी भर का तजर्बा था, जाहिर सी बात है तकरीबन 40 साल उन्होंने हुकूमत की थी। 20 साल तो स्टेट के अमीर थे और 20 साल जब हसन रजी अल्लाह ने खिलाफत सौंपी तो फिर 20 साल वो बाकायदा पूरे आलम इस्लाम के खलीफा रहे। तो कुल मिलाकर तकरीबन 40 साल उन्होंने हुकूमत की। तो इतना बड़ा तजर्बा था, इतनी बड़ी सियासी बसीरत थी। और अभी जैद भाई ने नक्शे में दिखाया कि वो जब खलीफा बने तो उसके बाद जो है आलम इस्लाम की कितनी तोसी हुई और बहुत बड़ी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। और यही तो वो चीज़ है ना जिसको देख कर लोग जले भुने जा रहे हैं। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जो है शरारतें करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनका ये कारनामा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में जो पेशिनगोई की है कि पहला जो समंदरी गजवा होगा वो जन्नती होगा, तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको शुरू किया था और उस हदीस के रूप से वो जन्नती हैं। तो उनके जो ये फजीलत है, जो कारनामे हैं, उसको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सराहा है, बल्कि जन्नत की बशारत दी है। और ये जो बशारत वाली हदीस है जिससे मुआविया रजी अल्लाह तआला जन्नती साबित होते हैं, अब कोई लाख चिल्लाए लाख शोर मचाए, इससे क्या फर्क पड़ता है जब ये कन्फर्म हो गया कि मुआविया रजी अल्लाह तआला जन्नती है। तो बहरहाल जिंदगी के आखिर में उन्होंने ये अपनी सियासी बसीरत से ये अंदाजा लगाया कि मेरे बाद खिलाफत के मसले को लेकर कोई हंगामा हो सकता है, कोई बात हो सकती है। उन्होंने पहले तो सह रुकनी कमेटी बनाई थी, लेकिन उसमें जब बास का इंतकाल हो गया तो फिर उनकी ये राय बदली और फिर उन्होंने सोचा कि किसी को नामजद कर देना चाहिए, किसी को नामजद कर देना चाहिए ताकि मेरी वफात के बाद खिलाफत के इशू को लेके कोई इख्तलाफ ना हो, किसी तरह से कोई हंगामा ना हो, किसी तरह से कोई मसला ना हो, क्योंकि इससे पहले आप देख चुके थे। तो ये असल मकसद था कि उम्मत को इख्तलाफ और इंतशार से बचाया कैसे जाए, ये असल मकसद था। मकसद ये नहीं था कि खिलाफत को अपनी खानदान में रखना, जैसा कि मुआविया रज़ी पर लोग इल्जाम लगाते। नहीं, मकसद ये था कि अब आगे कोई फितना फसाद ना हो। तो उसके लिए मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को नामजद कर दिया। इब्न खल्दून रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने यह अंदाजा लगाया कि अहले शाम किसी और की इताअत कबूल नहीं कर सकते और उस वक्त अहले शाम बहुत बड़ी ताकत थे मुसलमानों की। तो वो चूंकि किसी और की इताअत कबूल नहीं कर सकते थे, इसलिए मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने ये सोचा कि जब अपने खानदान का रहेगा तो ये लोग साथ देंगे, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बनु उमय्या में से थे, जब उनको बहुत ही बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और फिर उनके कातिलीन का भी वो हाथ नहीं आए, तो इतना ज़्यादा मायूसी बनु उमय्या में थी और इतना ज़्यादा वो रंजीदा थे, इतना ज़्यादा दुखी थे उस मामले को लेकर कि वो किसी पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी अजीम हस्ती को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, क्या जिसने अपने बचाव के लिए भी कोई कोशिश नहीं की, जिसने कोई फौज नहीं लगाई, जिसने अपनी जान तो दे दी लेकिन किसी को जान नहीं जाने दी। तो इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद उनके कातिल खुलेआम घूम रहे थे। तो ये सब देखने के बाद बनु उमय्या किसी और को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो हमारी जो कि वो फिर उस्मान रज़ी अल्लाह की वो तारीख दोहराए जो एक बार दोहरा चुका है और कातिल से दंदनाते घूमे। तो ये मौका हम देने वाले नहीं है। अब ये बनु उमय्या उसको लेकर काफ़ी जो है काफ़ी उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थे। इसलिए मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये लोग किसी और को कबूल करने पर कभी राज़ी नहीं होंगे और किसी इस खानदान से बाहर अगर किसी को बनाया गया तो फिर वो शख्स कामयाब नहीं होगा, उसे सपोर्ट हासिल नहीं हो सकेगा, तो बनाने का कोई फायदा नहीं दिखेगा। इसलिए मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये सोचा कि अपने इसी खानदान में से किसी चुनते हैं, तो फिर उनकी नज़र अपने बेटे यजीद पर गई और लोगों ने फिर उसके ताल्लुक से उन्होंने मशवरा किया और जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने मशवरा किया, बातचीत की, जा जाकर एक इलाके में, उस बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी। तो बहरहाल जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि अक्सरियत ने इसको तस्लीम कर लिया है, लोगों को एतराज़ नहीं है, तो फिर नामजद कर दिया। सही रवायात में देखेंगे तो सिर्फ 2 सहाबा को इससे इख्तलाफ था, एक अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला और एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला। बाकी और भी नाम आते हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला, लेकिन ये रवायतें साबित नहीं हैं। साबित रवायतें अगर आप देखें तो सिर्फ 2 सहाबा का नाम आता है, अब्दुर्रहमान बिन बकर
اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، پھر وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے بچے تھے۔ اچھا، ان دو صحابہ نے جو اختلاف کیا تھا، ہو سکتا ہے تاریخ روایت میں محفوظ نہ ہو، کچھ اور لوگ بھی ہو، اس سے انکار نہیں کیا سکتا، لیکن جن لوگوں نے بھی اس سے اختلاف کیا تھا، ان لوگوں نے یزید کی شخصیت کو بنیاد بنا کے اختلاف نہیں کیا تھا۔ ان کا اختلاف یزید کی شخصیت سے نہیں تھا کہ یہ مفضول ہے اور یہ جو ہے کمتر ہے، اس سے بڑے لوگ موجود ہیں تو اسے خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، بلکہ اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ یہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اور انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ دستور بن جائے کہ باپ کے بعد ہمیشہ بیٹا خلیفہ بنتا رہے، اس لیے اختلاف کیا صحابہ کرام نے۔ چنانچہ جن صحابہ نے اختلاف کیا ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا یزید جیسا کہ لوگ کہتے ہیں شرابی تھا، یہ تھا، وہ تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یزید برا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے وہ خلیفے کے لائق نہیں ہے، خلیفے کے لائق نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ تو ملوکیت کا مسئلہ ہو گیا نا، تو بادشاہوں کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ باقاعدہ بعض روایتوں میں صحیح سند سے موجود بھی ہے کہ باقاعدہ تشبیہ دی گئی کہ تو قیصر و کسریٰ والا دستور نکل آیا کہ باپ کے بعد بیٹا بن جائے گا، تو اس آئین سے اختلاف کیا تھا، یزید سے اختلاف نہیں تھا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کا۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے اختلاف کیا کیونکہ یزید شراب پی رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا، ان کے سامنے صحیح توجیہ نہیں ہے، اس لیے وہ یزید کو بلا وجہ شرابی، کبابی، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ جو ان سے اختلاف ہوا یزید سے، اس اختلاف کو کا کوئی جواز پیش کیا جائے، تو اس کا جواز پیش کرنے کے لیے بلا وجہ دنیا بھر کی تہمتیں یزید پر لاد دیا، جبکہ اختلاف کی بنیاد یزید کی شخصیت نہیں تھی کہ یزید کے کردار میں کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اختلاف کی بنیاد یہ تھی کہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے۔ اگر وہ بہت ہی افضل ترین شخص بھی کیوں نہ ہوتا، لیکن اگر وہ بیٹا، باپ کے بعد بیٹا ہے، اسے نامزد کرتے تو کسی نہ کسی طرف سے اختلاف ہو سکتا تھا کہ یہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا ہے، اور یہ معاملہ اس معاملے سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ اختلاف کی بنیاد کیا تھی کہ موجودہ خلیفہ کا بیٹا، آئین سے اختلاف کیا تھا، یزید سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ نیت بالکل بھی نہیں تھی کہ اپنے خاندان میں خلافت رکھنی ہے، یہی اصل بنیاد تھی، وہ تو فتنی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرے صحابہ کرام جنہوں نے تائید کی تھی، صحابہ کرام کی بڑی تعداد، ان صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے نیت بری نہیں ہے، اس لیے کسی نے، یعنی جو اکثریت تھی، انہوں نے اس کے خلاف کوئی جو ہے ہنگامہ نہیں کیا، نہ کوئی بڑی مخالفت کی، سب نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر اسی میں امت کا خیر ہے، اگر اسی میں مصلحت ہے، اگر اسی سے فتنے دب جاتے ہیں، تو یہی معاملہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ تو میں یہ جو بیک گراؤنڈ تھا نا، پس منظر تھا اس واقعے کا، وہ اس میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یزید کی جو ولی عہدی کا مسئلہ ہے، جو ان کو خلیفہ بنانے کے لیے جو پہلے طے ہوا، اس وقت حالات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، ان میں یہ کہیں نہیں ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو خلیفہ نہیں بنایا جا سکتے، یہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ یعنی اعتراض، بعض لوگ کیا اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزید سے افضل جب موجود ہے تو یزید کیوں بنا دیا؟ بھائی یہ بنیاد اہل سنت کی، ہاں یہ بنیاد ہے ہی نہیں، نہ قرآن کی روشنی میں نہ حدیث کی روشنی میں، کہ خلیفہ وہ بنے گا جو سب سے افضل ترین ہوگا۔ ایسا نہ کسی آیت میں ہے اور نہ ایسا کسی حدیث میں ہے، ایسا کہیں پہ موجود نہیں ہے کہ جو سب سے افضل ہوگا اسی کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا نا کہ جو سب سے افضل ہے وہی خلیفہ بننے کا حق رکھتا ہے، تو وفات رسول کے بعد خلیفہ کون بنے گا اس مسئلے کو لے کر کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسئلے کو لے کر بڑا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، اور کافی بحث کے بعد، کافی تکرار کے بعد، کافی گفتگو کے بعد، کافی سوچ وچار کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، حالانکہ وہ سب سے افضل تھے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ تو اگر فضیلت ہی معیار تھی خلیفہ بنانے کی، تو فاتح کے رسول کے بعد کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جاتے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، وہ صرف اس لیے نہیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل تھے، بلکہ اور پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا، اور ہر لحاظ سے وہی اہل تھے، وہی اس وقت مستحق تھی، اس لیے ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو لے کر اختلاف ہو جانا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ افضلیت کافی نہیں ہے کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ کمال کہ وہ افضل بھی تھے سب سے، اور خلافت کے جو گن ہیں اور جو خلافت کی جو صلاحیتیں ہوتی، جو اہلیتیں ہوتی، وہ ساری ان کے اندر تھی، اس لیے وہ خلیفہ بنائے گئے۔ اور دیکھیں اور بھی بہت سارے عہدے نا، کسی بھی طرح، یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، اور چھوٹے موٹے عہدے یا دوسرے عہدے جو دیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ دیکھ کر نہیں کہ جو سب سے افضل ہے اسے عہدہ دیا جائے، بلکہ آپ جنگی عہدہ دیکھیے جو کمانڈر کا عہدہ تھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، لیکن کیا وہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے؟ بتائیے، فوج کے کمانڈر ہیں، فوج جو کسی بھی حکومت کسی بھی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری حکومت کا دفاع کرنا، تو فوج کی جو قیادت دی جاتی تھی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت بڑے صحابی تھے، لیکن صحابہ میں سب سے افضل نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو جو ہے برا بھلا مت کہو، کسی کو ایسا مت بولو، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصفہ، تو ان لوگوں نے جو ایک مد خرچ کیا نا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں کتنا بڑا فاصلہ ہے، فضیلت کا کتنا بڑا فرق ہے، دونوں صحابی ہیں لیکن کتنا بڑا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قائد ہوا کرتے تھے، فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ یہ کمانڈری کیا فضیلت دیکھ کے دی جاتی ہے؟ نہیں، وہ اہلیت اور وہ صلاحیت، وہ قابلیت دیکھ کے دی جاتی ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں دیکھیں روئے زمین پہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مساجد ہوتی ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، آج اس کا ایک صدر ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا آج جو مسجد کا ٹرسٹ ہے یا تو اس کا جو صدر چنا جاتا ہے، کیا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کا جو سب سے متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، وہی مسجد کا صدر ہو سکتا، باقی نہیں ہو سکتا؟ نہیں۔ آپ بتائیے، سب سے مقدس جگہ اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اس کے ذمہ داروں کو چننا ہوتا تو وہاں تقویٰ نہیں دیکھتے، وہاں فضیلت نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں کون آدمی ہے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، مسجد کا صدر بنے اور صدر بننے کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، نہ کہ اس آدمی کو جو سب سے بڑا نیک ہو۔ بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے آج ہمارے دور میں تو اکثر جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، جو مساجد ہیں، ان کا جو سربراہ ہے نا، اکثر فضل میں، علم میں کم ہی ہوتا ہے، یعنی کمتری ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ فضیلت والے، اس سے زیادہ تقوی والے مطلب بے شمار کئی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو صدر نہیں بنایا جاتا ہے، بلکہ جن کو بنایا جاتا ہے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کو سنبھال سکیں گے، یہ ادارے کو سنبھال سکیں گے، اس بنیاد پہ بنایا جاتا ہے۔ کہیں دھاندلی بھی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن عام طور سے یہ چیز دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ تو بھائی آج ہم وہی کر رہے ہیں، چھوٹی سی مسجد کا انتظام سنبھالنا ہو تو ہماری ساری ہمت جواب دے جاتی ہے، ہم افضل آدمی کو سامنے دیکھتے ہیں، متقی آدمی کو سامنے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو ذمہ داری سونپ دے، کیونکہ وہ نہیں سنبھال پائے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو اسے مسجد کی ذمہ داری نہیں سونپنی تھی، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری سونپنی تھی، اس لیے یقیناً ان کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، بہت ساری بڑی شخصیات موجود تھیں، لیکن انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ کس کے حوالے ذمہ داری دیں کہ پھر وہ اس کو کامیابی ملے، اس کو لوگوں کا سپورٹ ملے اور فتنہ فساد نہ ہو۔ تو اس فتنے فساد کو روکنے کے لیے انہوں نے یزید کو جو ہے اس کا یزید کا نام پیش کیا کہ یزید جو ہے سربراہ بنے گا، یزید خلیفہ بنے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سوچا تھا کہ یزید کو خلیفہ بنائے اور اس سے جو ہے انتشار نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد تو بہت اختلاف ہوا، اس کے بعد تو بڑا مسئلہ ہوا۔ تو میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں، بڑا مسئلہ ہوا، لیکن یزید کے ہوتے ہوئے مسئلہ ہوا۔ کیا پتا کہ اگر یزید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس سے بڑے مسائل ہوتے، اس سے بڑے فتنے ہوتے، اس سے بڑی تباہیاں ہوتی، کچھ کہا جا سکتا ہے؟ تو یقیناً یعنی آپ سوچیں، یہ تو یعنی یزید کے خلیفہ بنانے کے باوجود بھی یہ حالات پیش آئے، یہ حالات بتاتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ کیا
जिस तरह से यजीद को सपोर्ट हासिल था, जिस तरह से उसको ताईद हासिल थी, बहुत सारे फितने हुए, बहुत सारे मसले हुए, लेकिन सपोर्ट और ताकत यजीद के पास ही रही। कोई और होता तो बताइए क्या अंजाम होता। देखिए लोगों ने हुसैन रजी अल्लाह तआला को कोहा बुलाया और ये शो कर रहे थे, ये जाहिर कर रहे थे कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब मदद करने का वक्त आया, साथ देने का वक्त आया, किसी ने उनका सपोर्ट किया, किसी ने उनका साथ दिया। हालांकि उस वक्त रुए जमीन पर बहुत बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत थी, बड़ी फजीलत वाली शख्सियत थी, लेकिन उनका साथ लोगों ने नहीं दिया। तो भाई ये चीज देखी जाती है कि जिम्मेदारी किसके हवाले करें, कि लोगों का ताउन उसके साथ हो, लोगों का सपोर्ट उसके साथ हो, और वो मामले को अच्छे से हैंडल कर ले जाए और उसे किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये सब देखते हुए मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद को खलीफा बनाया, और आने वाले हालात ने बिल्कुल साबित कर दिया कि मुआविया रज़ी अल्लाह की दूरअंदेशी बिल्कुल मबनी बर हक थी, और उन्होंने सही फैसला किया था। अगर उन्होंने किसी और को जिम्मेदारी दी होती तो शायद उससे ज्यादा खून खराबे या उससे ज्यादा मसले खड़े हो सकते थे जितने हुए। जब यजीद को खलीफा बनाने के बावजूद भी इतना हुआ, और फिर भी यजीद जो है यजीद के सपोर्ट में सारे लोग थे, फिर भी इतने सब कुछ हुआ, तो अगर कोई और आ जाता तो बताइए मसला कैसा होता, कितना खतरनाक हो सकता था। गर्ची कितनी अफजल तरीन शख्सियत क्यों न थी, हुसैन रज़ी अल्लाह की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये पसे मंजर था। अब आइए मैं मुख्तसर, बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जैसे लोग करबला का वाकया बयान करते हैं तो पूरा दिन बयान कर देते हैं, खत्म ही नहीं होता। तो ऐसा कुछ असल में इस वाकये में है भी नहीं कि उसे घंटों बयान किया जाए या उसे पूरा दिन बयान किया जाए, इतना बड़ा मामला नहीं है। ये तो लोगों ने इसे खींचतान के बहुत बड़ा बना दिया है। देखिए वाकई करबला में कुल जो है 5 हिस्से हैं। अगर हम उसको 5 किस्में में बांट दें तो उसको समझने में आसानी होती है। वाकई करबला का पहला हिस्सा है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना में थे तो क्या हुआ। वाकई करबला का दूसरा हिस्सा ये है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का में थे तो क्या हुआ। वाकई करबला का तीसरा हिस्सा है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा जाने लगे तो क्या हुआ। वाकई करबला का चौथा हिस्सा ये है कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब दमिश्क जाने लगे, यजीद के पास जाने लगे तो क्या हुआ। और वाकई करबला का पांचवा हिस्सा है कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जब करबला पहुंचे तो क्या हुआ। ये 5 हिस्से हैं, पांचों से मुतल्लिक हम मुख्तसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हिस्सा, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में मौजूद हैं, और इसी दौरान जो है मुआविया रज़ी अल्लाह का इंतकाल होता है। और उसके बाद जैसा कि प्लान था, शेड्यूल था, तय था कि यजीद खलीफा बनेगा, मुआविया रज़ी अल्लाह की वफात के बाद फौरन वो खलीफा बन जाता है। खिलाफत को लेके कोई हंगामा नहीं होता है, पूरे आलम इस्लाम में कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है। इधर इंतकाल हुआ, उधर अगला खलीफा जिम्मेदारी लेके बैठ गया। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इस दौरान मदीना में हैं। मदीना में जब तक हैं, किसी भी किताब में किसी भी सही सनद से कोई रवायत मौजूद नहीं है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना में होते हुए, मदीना में मौजूदगी के दौरान किसी तरह का कोई इख्तलाफ जाहिर किया हो मौजूदा हाकिम से, यजीद से, किसी भी तरह के मसले को लेकर कोई बात की हो, ऐसी कोई सही रवायत नहीं मिलती है। और अगर ज़ईफ रवायत देखें तो उसमें तरह तरह की बातें मिलती है। ये भी मिलता है कि हुसैन खिलाफ थे, और ये भी मिलता है कि वो तो बैत करने के लिए तैयार थे, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन सही रवायात को बुनियाद बनाए तो जब तक मदीना में मुकीम थे हुसैन उन्होंने यजीद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाक़े का जो दूसरा हिस्सा है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से निकल के मक्का चले आते हैं। मक्का क्यों आए? लोग यहाँ भी बदगुमानी करते हैं कि बैत से भागने के लिए मक्का आए थे। अस्तगफिरुल्लाह, अबे बैत से फरार के लिए मक्का आना होता तो मक्का में भी तो यजीद की हुकूमत है, मक्का में भी तो यजीद का हाकिम है, वो भी तो बैत का मुतालबा कर सकता है, तो मक्का आने का क्या मसला जो है, क्या तुक बनी। भाई देखिए मक्का लोग आते हैं, एक वजह होती है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं, और वो उस वक्त रजब का महीना था, तो हो सकता है उमरा करने के लिए गए हों। हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम ये को कहते हैं कि नहीं वो बैत का मसला था, और बैत का मसला था, बैत से फरार का मसला था, तो मक्का जाके क्या हल होने वाला था? क्या वहां बैत का मुतालबा नहीं हो सकता था? तो बहरहाल अच्छा गुमान रखना चाहिए कि कोई ये मकसद नहीं था कि जो है बैत से फरार इख्तियार करना, बल्कि मक्का लोग जाते हैं उमरा वगैरह के लिए, तो वो मकसद हो सकता है। बहरहाल मक्का आए, तो मक्का जब पहुंचे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तो यहाँ पे भी कोई सही रवायत मौजूद नहीं कि यजीद के खिलाफ थे। अलबत्ता एक सही रवायत मिलती है तबरानी की, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, कि जब मक्का पहुंचते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनके पास बहुत सारे उनको ये इशारा मिलता है हुसैन रज़ी अल्लाह को कि हमारी शख्सियत को लेकर, हमारी जात को लेकर किसी तरह का कोई खून खराबा हो सकता है। इसलिए और इस दौर में जो है कूफियों ने बहुत सारे खुतूब भी दिए, उनको बुला रहे थे। जब वो
मक्का आए तो बहुत सारे कोफी उनको खतूत दे रहे थे, खत लिख रहे थे कि आप हमारे पास आ जाएं और हम इनकी हुकूमत को नहीं चाहते हैं, आप आइए, आपको हम खलीफा बनाते हैं। और ये कोई पहले दफ़ा के खतूत नहीं है, मुआविया रज़ी की ज़िंदगी ही में हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बराबर ही लोग खत लिखते थे। चुनांचे इमाम फसवी की किताब में सही सनद से मौजूद है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, मुआविया रज़ी की ज़िंदगी में हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अहले कूफा ने खतूत भेजे। जब खतूत भेजे तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत बड़ी तादाद में खतूत भेजे। तो रावी हैं यजीद अल-असम, वो कहते हैं, ये देखिए ये इमाम फसवी की तारीख़ जो याकूब है, याकूब अल-फसवी, बिल्कुल सही सनद से उसमें जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 756 पे सही सनद से मौजूद है कि उनके पास जब ये खतूत आए, फमा फद्द मिनहा खातमुन वला नज़र फी उनवानिही, तो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना तो उस खत को, लिफाफे को खोला, मोहर को खोला, ना अंदर देखा कि उसमें है क्या, बल्कि क्या किया उन्होंने, पानी मंगवाया और सब उसमें डाल दिया ताकि वो स्याही से जो लिखा गया है वो सारी खतूत मिट जाए, उसमें कुछ भी है। तो ये कहते हैं यजीद अल-असम वहां मौजूद थे। फकुल, तो मैंने कहा कि या अबा मोहम्मद कुतुब मन हादी, कहते हैं कि मैंने पूछा कि ए हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये किनके खतूत हैं, ये कहां से आए, ये हैं क्या? तो काल हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हादिही कुतुब कौमिन, ये उन लोगों के खतूत है, ला यरजिऊना इला हक, ये कभी हक की तरफ नहीं आ सकते। कुतुब अहलिल इराक, ये इराकियों के खतूत हैं, ये उनके लेटर हैं जिन्हें मैं पानी में डुबो करके इसको नष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी जो है सुधरने वाले लोग नहीं हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं था, इससे पहले बराबर ही लोग खतूत दे रहे थे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब जब यजीद बाकायदा बैठ गया तख्त पे, तो अब यही लोग हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खत देने लगे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, उन्होंने ये सारे खतूत देखने के बाद ये इरादा किया कि कूफा जाना चाहिए वहाँ। अच्छा, क्यों जाना चाहिए? ऐसा नहीं कि खतूत देखकर उन्होंने सोचा कि चल के हम खलीफा बनते हैं, यजीद का तख्ता पलटते हैं, ये सब इरादा नहीं था। इरादा क्या था? देखिए, तबरानी की सही रवायत है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उन्होंने बाकायदा ये जिक्र किया। ये तबरानी की सही रवायत है। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में भी देखेंगे, जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 283, और अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 119 पे सही सनद के साथ ये मौजूद है कि उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से के सामने जिक्र किया। इब्न अब्बास कहते हैं कि इस्ताज़नी हुसैन फिल खुरूज, और फाकी की रवायत में फिल खुरूज इलल इराक, कि इराक, और इब्न अबी शैबा की रवायत में भी है कि यस्तशीरुनी फिल खुरूज इला मा हुना यानी इराक। अच्छा, यहाँ पे एक दिलचस्प बात मैं भी बताऊंगा। देखिए कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा लिया। क्या मशवरा लिया? कि भाई मैं कूफा जाना चाहता हूँ, मैं कूफा जाना चाहता हूँ, ये मशवरा लिया। और ये सही सनद से, ये बात बिल्कुल तबरानी में सही सनद के साथ है, इमाम फाकी की किताब में सही सनद के साथ है, इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ है, कई कुतुबे अहादीस में सही सनद के साथ ही वाक़या मौजूद है। और रावी, रवायत के रावी कौन है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि मुझसे हुसैन रज़ी ने मशवरा लिया, कहा कि मैं कूफा जाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है, क्या मशवरा लिया? कूफा जाना चाहता हूँ। अल्फाज क्या है रवायत के? अल्फाज ये हैं कि फिल खुरूज इलल इराक, कि मैं इराक जाना चाहता हूँ। बहुत अरसा पहले मैंने एक वीडियो जारी की, छोटी सी वीडियो मैंने पब्लिश की थी और एक तहरीर भी लिखी थी उससे पहले। उसमें मैंने ये कहा था कि पूरी दुनिया के मुहक्किकीन, पूरी दुनिया की रिसर्चर और पूरी दुनिया की उलमा इकट्ठा कर लें और पूरी दुनिया की किताबें इकट्ठा कर लें, लाइब्रेरियाँ इकट्ठा कर लें, और मैंने एक चैलेंजिंग बात कही थी कि कोई आदमी जो यजीद को गालियाँ देता है, वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से यजीद के खिलाफ सही सनद से कोई एक जुमला बता दे, कोई एक बात बता दे कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के खिलाफ कुछ कहा हो, पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के खिलाफ कुछ कहा हो, ये हमें बता दे। ये मैंने कहा था वीडियो में और मैंने लिखा भी था, लेकिन आज तक
कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से कोई एक सतर भी सही सनद से नहीं दिखा सका है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के खिलाफ कुछ कहा हो। किसी ने आज तक नहीं दिखाया। कोई है इस हिस्ट्री में तो लाए दिखाए, मौका देते हैं, आज भी कोई कोशिश करके बताए। तो एक बंदे ने बड़ी अजीबोगरीब उसका जवाब दिया, उसकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। वो कहता है कि ये जो इसने सनाबली ने चैलेंज किया, इसका जवाब हम इसी की किताब से देंगे, यजीद बिन मुआविया की किताब से देंगे। तो हमारी किताब से ये रवायत निकाला जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो उसमें ये था ना कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया फिल खुरूज, यानी मक्का से निकलने का। तो बंदे ने उसका तर्जुमा किया कि खुरूज यानी यजीद के खिलाफ खुरूज का मशवरा किया। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि इब्न अबी शैबा की रवायत में क्या है, फिल खुरूज यानी इराक। फाकी की रवायत में क्या है, फिल खुरूज इलल इराक। तो वो इराक जाने का के ताल्लुक से रवायत है, वो खुरूज अलल हाकिम वाली रवायत नहीं। खुरूज अलल इराक मुझसे मुराद है, यानी इराक जाना चाहता हूँ, वो खुरूज अला यजीद नहीं है। जाहिल आदमी ने उसको बहुत होशियार अपने आप को समझा, कह रहा कि ये जो हवाला मांग रहा हम इसी की किताब से निकाल के दिखाएंगे, वो भी सही सनद से। अरे बेवकूफ, इसमें ये कहा है कि यजीद के खिलाफ वो निकल रहे थे, इसमें ये है कि इराक जाने की बात है, खुरूज इलल इराक की बात है, इसको खुरूज अला यजीद बना दिया। तो बहरहाल इस रवायत का जो गलत मफहूम बता रहा था वो मैंने वाजे कर दिया। बहरहाल इस रवायत में है क्या, इस रवायत में है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मशवरा लिया कि मैं जाना चाहता हूँ इराक, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने मना किया, सख्ती से मना किया, नहीं आप वहां पे मत जाए। तो फिर क्या कहा उन्होंने, फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला ने कहा कि लान उक़्तला बिमकान कज़ा व कज़ा अहब्बु इलैया मिन अन युस्तहल्ल बि हरमुल्लाहि व रसूलिही। कहा कि देखिए अगर मैं कहीं और कत्ल कर दिया जाऊं, क्योंकि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारे साहबे कराम ने उनको कहा कि वहां जाएंगे तो फिर कत्ल हो सकते हैं आप। उन लोगों ने आपके बाप को मार डाला, यानी आपके वालिद को मार डाला, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और आपके भाइयों के साथ, जो आपके भाई के साथ बुरा सलूक किया, तो वो आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आप मत जाइए, आप कत्ल हो सकते हैं वहां पे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अगर वहां कत्ल हो जाऊं तो ये मुझे ज्यादा पसंद होगा बनिस्बत कि मैं यहाँ रहूं मक्का में या मदीना में, हरम इलाही में या हरम रसूल में रहूं, और यहाँ कोई खून खराबा हो जाए, तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर कोई खून खराबा हो तो कहीं बाहर हो, लेकिन यहाँ ना हो। यहाँ अगर होगा तो ये जो मुकद्दस सरजमीन है मक्का मदीना, यहाँ पे लोगों का खून ना बहे, किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये वजह थी मक्का से निकलने की। ये वजह नहीं थी कि यजीद का तख्ता पलटना है, जाके वहां खलीफा बनना है, ये करना, नहीं। वजह ये थी कि मैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मक्का रहना ही नहीं चाहते थे, और डर था कि उनकी जात को लेके किसी तरह का खून खराबा ना हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग रंग देते हैं कि उनको डर था कि ये मार डालेंगे, हुकूमत वाले मार डालेंगे, यानी यजीद के आदमी मार डालेंगे। भाई यजीद के आदमी से डर होता तो कहाँ जाते हो, जहां भी जाते हो वो खिलाफत है, कोई अलग अलग मुल्क थोड़ी है कि यहाँ से हिंदुस्तान से निकल नेपाल भाग गए, बच गए, हाँ, नेपाल से उधर बॉर्डर पार कर दिए, बच गए। अरे भाई वो तो चाहे मक्का में रहे तो वहां भी यजीद का हाकिम है, मदीना में रहे वहां भी यजीद का हाकिम है, कूफा रहे वहां भी यजीद का हाकिम है। तो अगर वो यजीद और उसके उम्माल और उसके हाकिमों से बचने के लिए मक्का छोड़ना चाहते थे तो कहीं भी चले जाते, हर जगह उसकी हुकूमत, उसकी खिलाफत है। भाई कहाँ जाते हो, आलम इस्लाम में कहीं भी चले जाते, हर जगह उसके लोग मौजूद हैं। और मक्का और मदीना के जो हाकिम थे वो तो बड़े नरम दिल थे। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शान में जर्रा बराबर उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की। वो तो बहुत ही पुरअमन लोग थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा उनको, तो उनके डर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो असल में ये चाहते थे कि ये लोग यानी अहले कूफा, ये अगर मैं यहाँ से यहीं रहा तो ये लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे और यहाँ तक पहुंच के काफी जो है हंगामा कर सकते। याद रहे सही बुखारी की रवायत है ना कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद किया गया तो उसमें उसका रिश्ता जहाँ बलवाइयों से मिलता है और इब्न सबा से मिलता है, वहीं कूफियों से भी उसका रिश्ता जुड़ता है। तो ये लोग भी, ये कूफी दहशतगर्द भी वहां पहुंच गए थे ये सब खुराफात करने के लिए। तो ये दहशतगर्द आ सकते थे मक्का, ये मदीना आ सकते थे, अगर ये यहाँ रहते तो यहाँ आके फितना फसाद कर सकते थे। इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने प्लान किया कि हमें यहाँ पे नहीं रखना है, नहीं रहना है। ये जवाब दिया इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को कि अगर मैं मक्का से नहीं निकला तो ये लोग यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ खून खराबा होगा, इससे बेहतर है कि यहाँ से निकल जाए
ताकि जो हंगामा हो कहीं और हो, यहाँ ना हो, ये मुकद्दस सरजमीन इससे मामले से पाक रहे। इब्न अब्बास कहते हैं कि जब ये बात उन्होंने कही ना, तो फिर मैं जो है खामोश हो गया। मैंने उन्हें रोकने का इरादा मैंने तर्क कर दिया कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर इसलिए जा रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं मक्का ताकि कोई खून खराबा यहाँ ना हो, तो कहते फिर मैं मुतमईन हो गया। तो ये मक्का में जब तक थे उसका ये मामला है। चुनांचे और भी कई रवायतें मौजूद हैं कि जब वो जाना चाहते थे तो कोई भी उनकी नियत हो, कोई भी मसला हो, लेकिन साहबे कराम, तमाम के तमाम साहबे कराम इनको रोक रहे थे कि आप वहां पे मत जाएं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक जो है अपने ही खानदान के एक शख्स को भेजा, मुस्लिम बिन अकील को वहां भेजा कि वहां जाएं और एक बार हमको आगाह करें कि चलो ठीक है, थोड़ा पता कर लेते हैं कि वहां जाने लायक क्या ऐसा मामला है कि जा भी नहीं सकते वहां पे। अब वहां गए तो उनकी खूब जो है मेहमान नवाजी हुई, उन्होंने वहां से पैगाम दे दिया कि आप आ सकते हैं। तो हुसैन रज़ी फिर निकल गए। अब ये निकल गए मक्का से। मक्का से क्यों निकले थे? क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ कोई खून खराबा ना हो, बस इतना उनके इतना सही रवायत से मिलता है। बाकी वो यजीद का तख्ता पलटना है, हुकूमत से आके लड़ना, ऐसा कोई प्लान उनके ज़हन में नहीं था। अब वहां से निकले मक्का से, तो अब ये इस वाक़े का तीसरा जो हिस्सा है कि जो कूफा की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हुआ, तो थोड़ी दूर गए थे तो उन्हें पता चलता है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब जब ये बात सुनते हैं ना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वापस होना चाहते हैं कि नहीं, अब हमें आगे नहीं जाना। अब देखिए ये वो मोड़ है ना जहां हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने इरादे से दस्तबरदार हो जाते हैं। यानी मक्का से निकलते वक्त जो लोग कहते हैं ना कि किस लिए जाते थे, दुनिया भर की बातें यहाँ पे कुछ भी उनके जहन में रहा हो, लेकिन यहाँ जब ये सुनते हैं कि अहले कूफा ने तो शहीद कर दिया, तो फिर अब वो अपने हर इरादे से दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ जो और लोग थे, उन्होंने ये नहीं पसंद किया कि हम वापस पलटें, क्योंकि उनके परिवार का जो है शहीद कर दिया गया। तो उन्होंने आगे बढ़ने का अज़्म किया। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला भी ना चाहती हुई उनके साथ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक काफिला, और ये तारीख तबरी वगैरह में सही सनद के साथ मौजूद है कि कूफा के करीब के कुछ लोग अब मिलते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुलाकात होती है। तो हुसैन रज़ी अल्लाह पूछते हैं उनसे कि कूफा के क्या हालात हैं। तो वो लोग क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि कूफा में तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कोई शख्स ना तो अंदर से बाहर जा सकता, ना बाहर से अंदर जा, पूरी तरह से कूफा को लॉक कर दिया गया है। आप बाहर से ना अंदर जा सकते हैं, कूफा में इंटर हो सकते हैं, ना कूफा के लोग बाहर निकल सकते हैं। पूरी तरह से लॉक कर दिया गया उस एरिया को। इब्न ज़ियाद है वहां पे, पूरी तरह से लॉक कर दिया, आप वहां पे नहीं जा सकते। अब जब ये सुनते हैं ना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कूफा का ये मामला है कि वहां इतना सख्त पहरा बैठा दिया गया है, तो फौरन जो है वो अपना इरादा बदल देते हैं और कहते हैं कि अब हम कूफा नहीं जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम सीधा दिमश्क जाएंगे, यजीद के पास जाएंगे। ये इस वाक़े का जो तीसरा हिस्सा था यहाँ पे ख़त्म होता है, और ये चौथा हिस्सा शुरू होता है इस वाक़े का कि जब वो दिमश्क रवाना होते हैं और अपने काफिले को दिमश्क की तरफ मोड़ देते हैं। और जब दिमश्क की तरफ मोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, तो थोड़ी दूर चलने के बाद कूफा के जो सरकारी लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, जो पहरा दे रहे थे, वो इन तक पहुंच जाते हैं और इस काफिले को रोक लेते हैं। इस काफिले को रोकते हैं, कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि भाई हम कूफा थोड़ी जा रहे हैं, हम तो यजीद के पास जाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, इसके लिए हमें यहाँ मकामी जो हाकिम है इब्न ज़ियाद है, उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा। उससे ऑर्डर लेने के बाद ही आपको हम जाने की परमिशन दे सकते हैं। तो उस वक्त जो सही सनद से साबित है, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा, तारीख तबरी वगैरह की रवायत है कि उन्होंने अल्लाह का वास्ता देकर कहा, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह का वास्ता देकर कहा और कहा कि हमें जो है यजीद के पास जाने दें। मैं चुनांचे तारीख तबरी के अल्फाज किया, फन्नाशदहुल हुसैन अल्लाह वल इस्लाम अन युसय्यिरुहु इला अमीरिल मुमिनीन फयदउ यदहु फी यदिही। हुसैन रज़ी अल्लाह ने अल्लाह इस्लाम का वास्ता दिया और कहा कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन के पास यानी यजीद के पास जाने दें, वो यजीद के हाथ में अपना हाथ रख देंगे, वो बैत करने के लिए तैयार हैं, हमें जाने दें। तो यहाँ पर तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया, पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया
अच्छा ये कहाँ है, ये तारीख तबरी की रवायत है भाई, तारीख तबरी की सही सनद से रवायत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 392, सही सनद से रवायत है, हमारी यजीद वाली किताब में भी ये नकल। तो कहा कि हमें जाने दें, कहा यजीद के पास, हम वहां पे जाना चाहते हैं, ये सही सनद से मौजूद है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इब्ने ज़ियाद से पूछना पड़ेगा। फिर इब्ने ज़ियाद से पूछताछ में जो रवायात है ना, वो सब ज़ईफ रवायत है, अगर क्या हुआ अल्लाह ही बेहतर जानता है, अजीब गरीब रवायतें हैं। बाद रवायतों में कि इब्ने ज़ियाद शुरू में मान गया, क्या ठीक है जाने दो, परमिशन दे दिया कि जाओ। फिर बाद रवायतों में कि नहीं वो शिमर ने भड़काया, ये किया, इस सारी बातें जो है बेबुनियाद सही सनद साबित नहीं है। बस ये इतना साबित है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमें यजीद के पास जाने दो, लेकिन उन लोगों ने नहीं जाने दिया। अच्छा बाद रवायतों में ये भी है, हालांकि वो सही सनद साबित नहीं है, कि हुसैन रज़ी अल्लाह ने 3 चीजें पेश की थी। ये 3 जो पेशकश थी ना, इसके ताल्लुक से कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये बात बहुत मशहूर है, यानी वाक़ई करबला से हवाले से इतनी मशहूर है कि शिया भी इसको जिक्र करते हैं, सुन्नी भी जिक्र करते हैं। और वाक़ई करबला से मुतल्लिक़ शायद ही कोई तारीखी किताब हो जिसमें इन 3 चीज़ों का जिक्र ना हो। ये 3 चीज़ें क्या है कि या तो हमें यजीद के पास जाने दें, या हमें किसी सरहद पर जाने दें, या मैं जहां से आया हूं वहां पे लौट जाने दें। ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। अच्छा इन तीनों चीज़ों में बात क्या है कि वो कूफा नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो समझ गए कि मक्कार लोग हैं। वो तो पहले भी जानते थे, लेकिन वो समझ गए कि इनके साथ कोई बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन कोफियों पे किसी भी तौर से उनके ताल्लुक से किसी खैर की उम्मीद नहीं रखते, कोई खैर की उम्मीद रखने वाले नहीं थे। इसलिए वो कह रहे थे कि अब हमें यजीद के पास जाना है डायरेक्ट, और वहां पे मैं बैत का ऐलान कर लूंगा। अच्छा यहाँ पर एक मसला और भी है कि यजीद के पास जाके मामला क्यों करना चाहते थे। इसलिए कि भाई उस जमाने में कोई टेलीफोन नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि वीडियो कॉल हो सकती, बात हो सकती है। इसलिए अगर वो कहते कि भाई मैं तो बैत करने को तैयार हूँ, मसला तो उनकी शख्सियत को लेकर इतना फितना बर्पा किया जा रहा था, तो वो चाहते थे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, फेस टू फेस बात हो जाए, ताकि हुकूमत को उनको सबको यकीन हो जाए कि बाकी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ तामुल करने वाले, अच्छा तामुल करने वाले हैं, कोई मुखालफत नहीं करने वाले हैं। ये फेस टू फेस वो क्लियर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ताकि बीच में कोई खबरी ऐसा ना हो जो बात को तोड़ मोड़ के जाके पेश करे और मसला कुछ का कुछ हो जाए। इसलिए वो डायरेक्ट जाके यजीद के पास अपना मामला क्लियर करना चाहते हैं कि वहां जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, उनको बता देंगे, कोई सारा फितना खत्म हो जाएगा। और इसी फितने को खत्म करने ही के लिए वो, यानी देखिए वो कुफियों के पास क्यों आ रहे थे, मक्का उन्होंने क्यों छोड़ा, ये तो मैंने आपको बता दिया सही सनद से। लेकिन अब ये कूफा क्यों आ रहे थे भाई, मक्का छोड़े तो कहीं भी जा सकते थे ना। मक्का अगर उनको छोड़ना था कि ताकि खून खराबा ना हो तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन आखिर उन्होंने कूफा का क्यों मुंतखब किया, कूफा को क्यों चुना। तो उसके पीछे तरह तरह की रवायतें आपको तारीखी रवायत मिलेंगी। कोई कहता नहीं वो इसलिए जा रहे थे ताकि अहले कुफा पे को साथ लेके और हुकूमत का तख्ता पलटे, यजीद के खिलाफ खरूज करें माज़अल्लाह, हालांकि ऐसी कोई बात साबित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो बाद रातों में यह है कि नहीं वो इसलिए जा रहे थे ताकि वहां पे इस्लाह का काम करें, उनको समझाएं और किसी तरह से अगर हो सकता है तो फितने को शांत करें। ये भी रवायतों में मिलता है। हम समझते हैं कि यही बात ज्यादा उनकी शख्सियत से मेल खाती है, क्योंकि दूसरी बातें बहुत संगीन है और कोई भी संगीन बात मानने के लिए बहुत पुख्ता सबूत चाहिए हमारे पास। यानी अगर हम वो जो सूरत हाल है उसको आप जिहाद का नाम दे दिए, जो भी चाहे नाम दे दिए, अच्छा नाम दे देने से वो सूरत हाल जो आप साबित कर रहे हैं वो सही नहीं हो जाएगी। यानी जो लोग उसको जिहाद का नाम दे रहे हैं हकीकत में वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खरूज है। अब वो पूरा जो सूरत हाल बयान करते हैं, वाक़या बयान करते हैं, वो खरूज का होता है, लेकिन कहते हैं खरूज नहीं था, ये जिहाद। यानी बात खरूज की करेंगे लेकिन फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो जिहाद था, ये तो ये था, ये तो वो था। भाई आप खरूज का पूरी सिचुएशन आप खरूज की बना दोगे और फिर उसका टाइटल बदल दोगे तो बात तो नहीं बनने वाली है। तो चूंकि खरूज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत संगीन बात है, अहले सुन्नत के यहाँ उसकी गुंजाइश भी नहीं है और कुरान और हदीस की रोशनी में भी उसकी गुंजाइश नहीं है। और इतनी बड़ी बात जिसकी गुंजाइश ना कुरान की रोशनी में हो, ना हदीस की रोशनी में हो, ना अहले सुन्नत की फ़िक़ही ज़ख़ीरे की रोशनी में हो, वो बात हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब कर दें बगैर किसी पुख्ता सबूत के, कैसे हो सकता है? ये हम तो नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। अगर ये बात हमने उनकी तरफ मंसूब कर दी जिसकी गुंजाइश कुरान में नहीं है, जिसकी गुंजाइश हदीस में नहीं है, जिसकी गुंजाइश अहले सुन्नत की फ़िक़्ह में नहीं है, अहले सुन्नत के फतावा में नहीं है, वो बात हम उनकी तरफ मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला सवाल करेगा हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हम उनकी तरफ ऐसी बात मंसूब नहीं करते। हम हुस्न ज़न रखते हैं और ये हम जवाब दे सकते हैं अल्लाह के पास।
کہ ہم نے حسن ظن رکھا کہ انہوں نے جو ہے اصلاح کا کام، اور بعض روایتوں میں موجود بھی ہے کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو اگر وہ اصلاح کا کام کرنے کے لیے کوئی فتنے فساد کو کسی حد تک ان کو سمجھانے کے لیے یا کسی طرح سے تاکہ ان لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر کے وہیں پہ ہم رہتے ہیں اور یہ معاملہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے فتنہ نہ برپا ہونے پائے، اس نیت سے اگر ہم ان تاریخ کی ان حصوں کو مان لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن اگر ان حصوں کو مان لیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ایک حسن ظن ہے. لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے تھے، تو یہ معاملہ یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نہیں ہے، صرف ان کا مسئلہ نہیں پھنستا یہاں پہ، بلکہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس مشن میں، اس مہم میں ان کا ساتھ نہیں دیا. یعنی اگر وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، حکومت کے خلاف جا رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام نے، دوسرے لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کسی کا ان کا ساتھ نہ دینا، یعنی وہ بھی کٹگری میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا نیک کام کرنے جا رہے تھے، آخر ان تمام صحابہ کرام نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو سوال صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر نہیں، ان پر بھی اٹھتا ہے. اور اس سے بھیانک صورتحال کیا سامنے آتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جو اصلاح کا قدم اٹھا رہے تھے، یعنی جو حکومت کا تختہ پلٹنے جا رہے تھے، یہ مسئلہ ان کو، یہ بات ان کے ذہن میں خود سے نہیں آئی، نہ صحابہ کرام نے ان کے ذہن میں ڈالا. یہ کس نے ان کے ذہن میں ڈالا؟ یہ اہل کوفہ نے ان کے ذہن میں ڈالا. یہ ہم کیسے مان لیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جیسی اتنی عظیم شخصیت، وہ اہل کوفہ ان کو لقمہ دیں گے؟ یعنی اہل کوفہ کی اوقات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ان کی یہ حیثیت ہے، ان کا پچھلا یہ ریکارڈ ایسا ہے کہ ان کو اس قابل ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں گے، ان کی انگلی پکڑ کر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ ہم کیسے مان لیں؟ ایک فتین لوگ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو لقمہ دیں، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس پر مزید یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ ان پر اعتماد کرنے کی ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہمارا زینہ بنیں گے، ہمارا سپورٹ کریں گے. حسین رضی اللہ عنہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں اہل کوفہ پہ، جن اہل کوفہ نے ان کے والد کو شہید کیا، ان کے بھائی کے ساتھ غداری کی، اور اہل کوفہ کے بھی کئی لوگوں کا ہاتھ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر. اتنے بڑے فتین لوگ، آخر ان پر بھروسہ کر کے ان کے سہارے اگر حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو ان کے سہارے حسین رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے. ایسے فتین لوگوں کو شانت کرنا ہو تو شاید کوئی کوشش کر سکتے ہیں وہ کہ چلو ان کے فتنے کو کم کیا جائے، ان کے زور کو توڑا جائے، ان کو سمجھایا جائے، شاید یہ ہمارے لحاظ میں یہ فتنہ بند کر دے. یہ تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن ایسے فتین لوگوں پر بھروسہ کرے، ان کو اپنا چہیتا سمجھے، ان کو اپنا معاون سمجھے، اور ان کو اپنی فوج سمجھے، ان کو لے کر چاہیں کہ ہم جا کے تختہ پلٹ دیں گے. حسین رضی اللہ عنہ سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان پر اس طرح کا اعتماد کریں کہ یہ ہمارا سپورٹ کریں گے، جو کہ فتین ہے، جن کے تعلق سے خود حسین رضی اللہ عنہ کے کئی بیانات موجود ہیں تاریخ کی روایت میں کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ذریعے خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ کوفہ جانے سے پہلے بعض روایتیں ایسی ہیں تاریخی، ہم نہیں کہتے روایتیں سندن صحیح ہیں، لیکن تاریخی روایتیں میں ایسے کئی بیانات ان کے محفوظ ہیں کہ جب وہ خطوط ان کو ملے، جیسے طبقات ابن سعد کی روایت ہے جس کے سارے رواة ثقہ ہیں، لیکن جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کے بعد اس کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، باقی جتنے نام منشن ہے سب کے سب ثقہ ہیں، یعنی اس میں کوئی جھوٹا راوی موجود نہیں. اس میں کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے پاس جو خطوط ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ ہمارے پاس کچھ خطوط ہیں، اور کہا کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں خط دیا ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے ذریعے کوئی فتنہ کرنا چاہتے ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں لوگ. تو بتائیے جو حسین رضی اللہ عنہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کس قدر فتین ہے کہ ہماری جان بھی لے سکتے ہیں، ایسے دشمنوں اور ایسے نالائکوں کو وہ اپنا معاون سمجھیں گے کہ ہماری مدد کریں گے تو ان کے ذریعے ہم کچھ سے کام کریں گے؟ نہیں. ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی مہم کا حصہ بنانے کی کوشش کوئی معقول آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مہم کا حصہ بنانا چاہتے تھے، یہ ان کو زینہ بنا کے آگے جو ہے یزید کا معاملہ پلٹنا چاہتے تھے، یہ سب ہم نہیں مان سکتے. تو بہرحال جب دمشق جانے لگے اور ان لوگوں نے روک لیا حسین رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یزید سے ملنا چاہتے ہیں، یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانے دیا جائے. لیکن اس دوران دیکھیے صرف وہ سرکاری لوگ نہیں تھے،
उस वक्त जो सरकारी लोग थे, पुलिस थे, ऐसा नहीं उनके पास बंदूक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी हथियार हैं, वो चाहे तो भीड़ को कंट्रोल कर सकते, नहीं। जब ये मामला हुआ तो बहुत सारे कोफी को जब पता चला कि हुसैन रज़ी यहाँ तक आ चुके हैं, तो दौड़े दौड़े वो भी आके वहां पे पहुंच गए। तो बहरहाल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया कि नहीं, हमको वहां पे जाने दिया जाए। तो उसके बाद वो चलते रहे, वो आगे चलते रहे दिमश्क की तरफ, और यहाँ तक कि वो, और ये बातचीत होती रही, वो चलते रहे, यहाँ तक कि वो करबला के मकाम पर पहुंचे। ये इस वाक़े का 5वां और आखिरी हिस्सा है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब करबला पहुंचे तो क्या हुआ। जब करबला पहुंचे तो पूरी तरह से उनको रोक दिया गया, वहां से बिल्कुल आगे बढ़ने से उनको मना कर दिया गया कि आप यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आप जानते हैं करबला जो जगह है वो मक्का से कूफा के रास्ते में नहीं है, वो मक्का से शाम के रास्ते में, यानी मक्का से अगर आप शाम जाएं तो वो रास्ते में करबला पड़ता है, मक्का से सीधा अगर कूफा जाए तो बीच में करबला नहीं पड़ता है। ये सफर का ये पड़ाव भी बताता है कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के जिम्मेदार कौन थे। अगर ये यजीद जिम्मेदार होते तो उनकी तरफ रुख ना करते, ये कूफी जिम्मेदार थे। बहरहाल करबला में उनको रोक लिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया, और यहीं पर उनको शहीद कर दिया गया। इसके ताल्लुक से बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन हम यानी बहुत सारी रिवायतें हैं, लेकिन वो सही नहीं, हम उनको पेश करके बहुत ज़ाहिर नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल करबला में उनको रोक के यहीं उनको शहीद कर दिया गया, करबला ही में उनको शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके कि वो ऐलान कर रहे थे कि हम यजीद के पास जाने दो और हम उसके हाथ में हाथ रख दें। और यही उनका ऐलान, इसी वजह से तो उन लोगों ने जो है उनको शहीद किया। हकीकत में अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला यजीद के पास पहुंच जाते और वहाँ ये सूरत हाल से आगाह कर देते तो अहले कुफा के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। जो लोग उकसा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती थी। उनको बहुत सारे खतरात थे और एक जिद भी थी ना, इंतकाम भी था। खतरा ना भी हो तो बहरहाल उनको एक गुस्सा था कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से हम क्या उम्मीद रखते हैं और ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले क्या उनके बड़े भाई पे तो गुस्सा नहीं जाहिर किया। जब हसन रज़ी अल्लाह तआला ने मुआविया रज़ी के साथ सुलह की तो माअज़ल्लाह इन बदबख्तों ने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन उनका लक़ब था ना, तो कहा या माअज़ल्लाह, उन्होंने कहा कि मुज़िल्लुल मोमिनीन, कि आप अमीरुल मोमिनीन, आपने मोमिन को तो जलील कर दिया। ये उन लोगों ने हसन रज़ी अल्लाह तआला के साथ सलूक किया और उनको नेज़े मारे। हसन रज़ी अल्लाह तआला को नेज़े मारे, बाद रात में उनको जहर दिया गया, उसी से उनकी वफात हुई। तो ये हाल किया हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जबकि हसन रज़ी अल्लाह तआला इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने वाले नहीं थे। यानी इन मक्कारों, इन गद्दारों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई का भी इरादा नहीं रखते थे, कोई मुआविया रज़ी से ये भी कोई कंप्लेन करने वाले नहीं थे। इसके बावजूद भी महज इस वजह से हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन लोगों ने सताया, मारा, नेज़ा मारा, जख्मी किया, जहर दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया से सुलह कर ली और ये जो फितना फसाद का इनका तसलसल सा उसे तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। महज इस जिद में ये हाल किया हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनको जहर दे दिया, उनको भी जो है उनकी भी मौत का सबब बने। तो भाई उनके भाई को कहाँ माफ़ करने वाले थे। जब देखा कि ये भाई भी हमारा साथ नहीं दे रहा तो उनके साथ भी वही किया जो उनके बड़े भाई के साथ किया था, बल्कि उनसे ऊपर उनके दोनों के वालिद अली रज़ी अल्लाह के साथ जो किया था इन लोगों ने वही किया। यानी बाप के साथ भी है शरीक। जब बाप ने अली रज़ी अल्लाह तआला ने इन दोनों के वालिदे मोहतरम ने जब इनसे इख्तलाफ किया, इन लोगों को सबक सिखाया, उनको भी जो है शहीद कर दिया। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने इनकी बात नहीं मानी, उनको शहीद कर दिया इन लोगों ने। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इनकी नहीं बात मानी, इनको भी शहीद कर लिया। कितना वाक़या कितना साफ है, कितना क्लियर है कि मामला सिर्फ पहली शहादत नहीं, इससे पहले शहादतें हुई है। कत्ल का एक सिलसिला है, ये सीरियल किलर हैं ये लोग, ये एक के बाद एक अहले बैत को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, और एक ही कातिल है, वही एक ही जगह है, एक ही लोकेशन है। और ऐसा नहीं है, सब एक पूरे बयानात मौजूद हैं, साहबे कराम के स्टेटमेंट मौजूद हैं, गवाहियां मौजूद हैं कि इन्होंने मारा है अली रज़ी को, इन्होंने कत्ल किया अली रज़ी को, इन्होंने नेज़ा मारा है हसन रज़ी को, और इन्होंने शहीद किया है हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो मेरे भाइयों, ये बहरहाल जब वो शहीद हो जाते हैं तो शहादत के बाद जो है काफिले में जो लोग बचते हैं, खासतौर से एक चश्मदीद गवाह, ये बहुत अहम चीज़ है कि इस पूरे वाक़े में एक अहम चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है, ज़ैनुल आबिदीन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे, सगे बेटे, उन्होंने अपनी आंखों से पूरा मंजर देखा है। जब ये काफिला कूफा ले जाया गया, वहाँ ये लोग कुछ दिन तक थे
اور اس کے بعد یہ لوگ کہاں گئے, یزید کے پاس ان کو بھیجا گیا. تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کر دی ہے, صفین نامی کتاب سے, صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے. تاریخ ابن ساکر میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس میں کیا ہے, زین العابدین کہتے ہیں کہ جب فلما رآنا, جب یزید نے ہم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. یعنی یزید دیکھتے ہی رو پڑا. اور زین العابدین سب سے اہم بات کیا کہتے ہیں, اعطانا ما شئنا, ہم نے جو چاہا یزید نے ہم کو دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین کے بیٹے کہہ رہے ہیں جن کے باپ شہید ہو چکے کوفہ میں. اگر یہ سارا معاملہ یزید کی طرف سے ہوتا تو یہ بیان ہوتا کہ ہمیں دیکھ کے رو پڑا. یاد رہے کہ جب کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ یعقوب وغیرہ میں کیا ہے, یعقوبی میں کیا ہے, وہ صحیح سند سے نہیں لیکن یہ بھری پڑی اس طرح کے بیانات بھرے پڑے ہیں کہ زین العابدین جب کوفہ کے قریب ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ کی عورتیں رو رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہا اولائی یبکین علینا, یہ ہم پر رو رہی ہیں. فمن قتلنا, تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ کہا انہی لوگوں نے تو ہم کو قتل کیا اور یہی لوگ رو رہے ہیں. لیکن یہی زین العابدین جب پہنچتے ہیں یزید کے دربار میں, یزید روتا ہے تو وہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی نے تو ہم کو مارا, ہم کو رو رہا. زین العابدین وہاں یہ بات نہیں کہتے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں, یزید ہم کو دیکھ کے رو پڑا اور جو ہم نے چاہا وہ سب دیا, جو ہم نے مانگا سب دیا. چنانچہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی نا کہ ہمیں واپس جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں جانے دیجیے. اب حسین رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی؟ ایک یزید کے پاس جانے کی تھی, پھر ایک یہ تھی کہ ہمیں وہاں بھیج دیا جائے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو زین العابدین یہ پورا قافلہ بہرحال یزید کے پاس پہنچ گیا. جب حکومت کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے سب کو بھجوا دیا یزید کے پاس. یہ قافلہ چاہتا تھا کہ وہاں جائیں, وہاں پہنچا. یہ حسین رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی, اس خواہش کو پورا کیا موجودہ وہاں کے حاکم نے, یزید کے پاس بھجوایا. اور پھر وہاں پہ ان لوگوں نے وہ بات رکھی کہ مدینہ جانا ہے, تو یزید نے پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھجوا دیا. اور اس کے بعد زین العابدین رحمہ اللہ پوری حیات تک, جب تک زندہ رہے, انہوں نے یزید کے خلاف ایک حرف بھی نہیں کہا. حتیٰ کہ جب مکہ میں ایک وقت, مدینہ میں ایک وقت آتا ہے, وہاں کے لوگ یزید کے خلاف ہو جاتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, فتنہ فساد کرتے ہیں. اس میں صحابہ شامل نہیں ہیں, بعض لوگ زبردستی اس میں صحابہ کو شامل کرتے ہیں, صحابہ شامل نہیں. اسی طرح کا فتنہ تھا جو اس سے پہلے اسی شہر میں مدینہ میں, اور مدینہ کے حاکم نہیں بلکہ مدینہ کے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا, اسی شہر میں مدینہ میں ان کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح کا دوسرا ڈرامہ اور یہ دوسرا کھیل رچانے کی کوشش کی گئی حکومت کے خلاف, وہاں کے حاکم کو نکال کے باہر کیا گیا, یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس پورے معاملے میں جس طرح سے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کی, وہ منع کرتے تھے بغاوت مت کرو, یہ مت کرو. تو اس موقع پہ زین العابدین بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے تو حصہ نہیں لیا. حالانکہ ان کے اگر والد کو شہید کیا گیا تھا تو کتنا اچھا موقع تھا بھائی وہ تو کوفہ والے تو ساتھ نہیں دے رہے تھے نا وہ, لیکن یہ تو مدینہ والے تو پورا یزید کے خلاف تھے. تو پھر یہاں پہ جو ہے یہ جو مدینہ کی اتنی بڑی تعداد یزید کے خلاف ہو گئی تھی, ان کے ساتھ تو مل سکتے تھے, لیکن نہیں. زین العابدین بلکہ اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے بھی مدینہ میں جو بغاوت ہوئی تھی اس میں حصہ نہیں, یزید کے خلاف حصہ نہیں لیا. بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی, صحیح سند سے ثابت ہے, تاریخ ابن ساکر وغیرہ کی روایت ہے کہ حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ, ان کے پاس کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف جو ہم کاروائی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ دیجئے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا یزید نے کیا بگاڑا تمہارا, یہ سب کیوں کر رہے ہو خرافات. انہوں نے کہا وہ تو شراب پیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو محمد بن حنفیہ نے کہا وہ شراب پیتا ہے, تم کو کس نے بتا دیا شراب پیتا ہے؟ اگر وہ شراب پیتا ہے اس کا مطلب اس ٹیبل پہ تم بھی تھے. شراب پینے کی گواہی کون دیتا ہے؟ جو خود بیٹھ کے شراب پیتا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ محمد بن حنفیہ کا جملہ بڑا ہی چپتا ہوا. کہا کہ اگر تم نے دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے, اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو مطلب تم بھی پی رہے تھے. بھائی ایک بندہ اگر کوئی شراب پیے گا تو شراب ایسے تھوڑی کسی شریف آدمی کو بلا کے سامنے شراب پیے گا, پھر شرابی کے سامنے شراب پیے گا. تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو اس پاپ میں تم لوگ بھی شرابی ہو. تو کہا نہیں وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. تم لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے نہیں دیکھا شراب پیتے ہوئے یزید کو, ہم نے سنا ہے. کہا کس سے سنا ہے؟ سنا تو کس سے سنا؟ اگر تم نے دیکھا تو تم بھی شراب پیے ہو, اگر تم نے شراب پیتے ہوئے یزید کو دیکھا تو تم بھی شرابی تھے, اور اگر تم نے سنا تو کس کو سنا بتاؤ, کس سے سنا بتاؤ. تم نے کہا نہیں وہ نام نہیں بتایا, کوئی ریفرنس نہیں دیا, کوئی حوالہ نہیں دیا. تو محمد بن حنفیہ نے ڈانٹا, کہا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی پہ الزام لگانے کا, قرآن تو یہ سکھاتا ہے. اس کے بعد ان کی جو باتیں تھی, الزامات تھے, پہلے ان کو کاؤنٹر کیا, اس کے بعد اپنی شہادت پیش کی. کہا کہ وقد رأیت یزید, ہم نے یزید کو دیکھا ہے, اقمت عندہ, میں وہاں قیام کیا ہوں, اس کے ساتھ رہا ہوں,
रअयतुहु मुआजिबन लिस्सलात, मैंने तो यजीद को नमाज का पाबंद पाया है, मुलाजिमन लिस्सुन्ना, सुन्नत पे अमल करने वाला पाया है, यसअलु अनिल फिक्र, वो मसले मसाइल पूछता है, फिqही बातें लोगों से सवाल करनी, उलमा से पूछ के इकदामात करता है। ये सारी चीजें मैंने पाई है यजीद के अंदर, और तुम ये क्या खुराफात ला रहे हो, शराब पीता है, ये करता वो करता। ये कौन कह रहा है? ये हुसैन रजी अल्लाह तआला के भाई मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे हैं। अब बताओ, अगर यजीद ने मारा होता इनके भाई को, तो इतना मतलब उस पे लगाए गए इल्जामात का दिफा सिर्फ दिफा नहीं कर रहे हैं, बल्कि गवाही भी दे रहे हैं कि वो नमाजी है, वो तो मसले मसाइल पूछता है, वो तो सुन्नत पे अमल करता है। इस तरह की गवाही देते हैं उनके भाई, लेकिन नहीं हो सकता था। ये सारी बातें बताती हैं, और वो भी जब पूरा यानी मदीना की एक बड़ी तादाद यजीद के खिलाफ खड़ी है, ऐसे मौके पे बंदा यजीद का साथ दे रहा, हैरान करने वाली बात है भाई। यहाँ बगावत हो रही है और अहले बैत यजीद का साथ दे रहे, यजीद के खिलाफ जो यजीद के मुखालिफिन उनको डांट रहे हैं और उनके सामने यजीद के फजाइल बयान कर रहे हैं, यजीद की खूबियां बयान कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि अगर यजीद का हाथ होता तो ये सब मामला होता? तो ये सब वाकयात बताते हैं कि इस शहादत के पीछे यजीद का हाथ नहीं था। और मैं बात खत्म करूंगा ये कह के कि देखिए, उस वक्त सहाबे कराम, यानी इस वाकये के बाद सहाबे कराम हमारे लिए बहुत बड़ा मर्जा है किसी भी मामले में। तो ये वाकया चूंकि सहाबे कराम के दौर में हुआ, तो हमें ये भी सोचना चाहिए ना कि सहाबे कराम के स्टेटमेंट क्या है, सहाबे कराम के बयानात क्या है, इस वाकये पे उनके तबसरे क्या है। आज हम बैठ के तबसरा करते हैं कि यजीद ने कर दिया, यजीद ने कर दिया। ये बात किसी एक साहबी ने कही है? भाई अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत रज़ी अल्लाह तआला, सही बुखारी मौजूद है। वो कहते हैं कोई इराकी ने मच्छर मारने का मसला पूछा, तो कहा ये मच्छर के बारे में परेशान है और नबी के बेटे को मार दिया इन लोगों ने, उसकी फिक्र नहीं है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत सही सनद से मौजूद है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की लानत हो इराक पर, उन्होंने अल्लाह के नबी के बेटे को कत्ल कर दिया। ये सहाबा सहाबियात, इनका मुत्तफका बयान है। सारा इल्जाम किस पे रखा है? इराक पे रखा, हुकूमत पे नहीं रखा। हुकूमत के ताल्लुक से ऐसी कोई बात नहीं की। तो सहाबे कराम की जब बयानात मौजूद हैं, तो आज हम इतने सदियों के बाद हम एक नई कहानी बना रहे हैं, उसको नया मोड़ दे रहे हैं। और मैं बात खत्म करूंगा ये बता कि मेरे भाई, इस कहानी को जो बदला गया है, जो बाद में स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो जो आजकल के जो खवारिज हैं, जो हुकूमतों के खिलाफ बगावत करते हैं, तो वो अपने इस जो है खतरनाक मुहिम में या इतने इस गलत सोच को परवान चढ़ाने के लिए, लोगों का जहन भड़काने के लिए, नौजवानों का दिमाग खराब करने के लिए वो इस वाकये का सहारा लेते हैं। ये देखो, तख्ता पलटना चाहिए, हाकिम के खिलाफ लड़ना चाहिए, हुसैन रज़ियल्लाहु लड़े थे, फला लड़े थे। तो इस वाकये को इस्तेमाल करते हैं लोग। इनका पूरा दीन धर्म, इनकी पूरी फिक्र इसी वाकये पर खड़ी हुई है। अगर ये इस वाकये की सही सूरत हाल आ जाए, तो ये लोग गुमराही से बच जाएं। ये लोग इस वाकये को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि कैसे ये वाकया, इसको इस्तेमाल करके लोगों का जहन भड़काया जाए, उनको अंदर बगावत हो की जाए, उनको हुकूमत के खिलाफ भड़काया जाए, और उनको ये नारा दिया जाए कि यही हुसैनियत है कि यजीदियत के खिलाफ खड़े हो जाओ, जबकि हुसैन रज़ी अल्लाह तो बैत करने के लिए तैयार थे। तो ये इस वाकये का एक खतरनाक पहलू है कि इसे वो मोड़ दिया गया और इसकी ऐसी स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई और उसको इस तरह से बयान किया गया ताकि नौजवान का दिमाग खराब हो जाए। उनको जब चाहो किसी हुकूमत के खिलाफ भड़का दो इस तरह की बातें बता के, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफक अकीदा है, मना जो उनका तरीका, उनका फतवा है कि हाकिम के खिलाफ आप खरूज नहीं करेंगे। हाकिम जब तक कुफ्र न करे, अगर वो कितना फासिक फाजिर हो, कितना बड़ा जालिम हो, लेकिन उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। अब मैं एक जुमला और याद आ रहा है, उसको बयान करके बात खत्म करूं। ये लोग कहते हैं ना कि यजीद शराबी था, ये था वो था। आप इनसे एक सवाल करें कि अगर यजीद बुरा था, कोई मसला था, तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के खिलाफ अगर लड़े थे, तख्ता पलटना चाहते थे, तो यजीद ने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके खिलाफ जा रहे थे? कौन सी गलती किया था यजीद ने? क्या 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 बुराई की थी उसने? तो क्या कहेंगे? अब किससे पूछे यजीद की बुराई किया तो क्या बोलेंगे? हुसैन को कत्ल किया, काबा पे हमला किया, मक्का के लोगों को मदीना पे हमला किया, ये बताएंगे। अरे ये सारे मामला तो करबला के बाद के हैं भाई, ये तो करबला के बाद वाला यजीद है। जिस यजीद से लड़ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, उसने कौन सा जुर्म किया था, ये तो बताओ। यानी मुआविया ने जिस यजीद को खलीफा बनाया था, मुआविया रज़ी अल्लाह की वफात के बाद कौन सा पाप किया था उसने? कौन सा गुनाह किया था उसने? किसको मारा था? कौन सी उसकी ऐसी गलती थी जिसकी बुनियाद पर खुरूज रवा होता, उसके खिलाफ निकला जा सकता था? कौन सा ऐसा पाप किया था? अरे उसने शराब भी पिया हो तो भी ये चीज जायज नहीं थी कि उसके खिलाफ आप निकल जाए।
उसने इक्का दुक्का किसी को मारा भी होता तो ये भी काफी नहीं था कि आप उसके खिलाफ निकल जाए। उसने कुफ्र किया होता, कोई ऐसी भयानक चीज की होती तो उसकी कोई गुंजाइश थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया। ये जो आप बताते हैं कि यजीद ने ये कर दिया, ये तो बात के वाकया थे जिसमें यजीद ने शुरुआत भी नहीं किया, उसका तो रिएक्शन है, रद्द अमल है, उसमें कोई चीज ना करबला में जो कुछ हुआ उसमें यजीद का कोई हाथ है। मदीना वालों ने जो बगावत की थी उसमें यजीद का क्या कसूर है? बगावत की थी उन लोगों ने, बगावत की, उसने उसके पास एक हक था, फौजी कार्रवाई उसने की। आप ये कह सकते हैं कि उसको हैंडल नहीं कर सका, उसको पुरअमन तरीका कोई नहीं, या आप कह सकते हैं कि कोई किसी पुरअमन तरीके से वो मामला रफा दफा नहीं कर पाया, लेकिन फौजी ताकत इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं आज की डेट में इसी मदीना में अगर कोई हंगामा करे, कोई आतंक फैलाए तो क्या बचेगा? क्या गोलियां नहीं चलेंगी? क्या शूट नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों को? छोड़ दिया जाएगा ऐसे लोगों को? तो कौन सी हुकूमत है जो कि अगर उसके किसी स्टेट में कोई बगावत करे तो उनको छोड़ देगी? सब हुकूमत की नजर में सबसे बड़ा पाप होता है कि हुकूमत के खिलाफ आप खड़े हो जाए, कोई माफ करने वाला नहीं, कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो बहरहाल, और ये बात की बगावतों में सहाबा शामिल नहीं थे, ये बिला वजह उनका नाम न ले, उनमें उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं था। तफसील के लिए आप यजीद वाली किताब पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये चंद बातें थी वाकई करबला के हवाले से। खुलासा इन सारी बातों का यही है कि ये एक वाकया था जो बहुत ही मुख्तसर वाकया था। ये इतना बड़ा वाकया नहीं जितना इसको बयान किया जाता है, 10 दिनों तक या घंटों तक बैठ के लोगों को रुलाने के लिए, लोगों को गरमाने के लिए, और अहले बैत की जो तारीख पेश की जाती है, ऐसा लगता है कि बस उनकी अहले बैत की जिंदगी में सिर्फ खून खराबा है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अहले बैत ने जो पुरअमन तारीख रकम की है, जो अमन कायम करने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, हसन रजी अल्लाह तआला ने जो कुर्बानी दी है, और फिर ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की जो कुर्बानी है, फिर अली रज़ी के जो कारनामे हैं, इन लोगों ने जो दूसरे कारनामे अंजाम दिए हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जो दूसरी जिहाद में शिरकत की ना, जिहाद के कई मार्कों में हुसैन रज़ी ने शिरकत की, उसको कोई जिक्र ही नहीं करता। सिर्फ यही, बस उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ यही जिहाद किया। अगर तुम्हारी नजर में जिहाद है तो जिहाद सिर्फ एक बार किया हुसैन रज़ी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट में बस, और पूरी लाइफ में, जवानी में कोई जिहाद नहीं किया। अरे भाई, कई जिहाद में जाते थे हुसैन रज़ी, बल्कि बाद रवायत है ना कि यजीद कमांडर होता था, उसकी कमांडरी में जाके जिहाद लड़ते थे, जो है जिहाद करते थे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो पूरी जिंदगी उनकी इस्लामी खिदमत से भरी पड़ी है, वो आपको नजर नहीं आता। आपको सिर्फ वही उनकी हुसैन रज़ी की जिंदगी सिर्फ 5 मिनट दिखाई देते हैं। और हुसैन रज़ी की जो रिवायात हैं, हदीस की रिवायात हैं, हुसैन रज़ी ने जो फतावा हैं, उनके जो दूसरे कारनामे हैं, वो आपको पता नहीं। तो ये लोगों ने जो ऐसा ड्रामा रचा हुआ है कि अहले बैत के नाम से सिर्फ खून खराबे की बात करते, बस अहले बैत की फजीलतें इनको नहीं मालूम है। और अहले बैत में जो जिन लोगों ने जो जैसे वो हसन रज़ी उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, ये उनका जिक्र तक नहीं करते, हालांकि उनका जिक्र अल्लाह के नबी ने किया। हाँ, ये जिक्र हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र हसन नहीं होता। अरे जिक्र हसन अल्लाह के नबी ने किया, मिंबर पर खड़े हो गए कहा मेरा ये बेटा सुलह कराएगा, उसका तुम तस्करा तक नहीं करते, और जिक्र हुसैन के नाम से ये सब खुराफात करते हो। तो अहले बैत की वो सीरत। अब जैसे एक मंचला था यूट्यूब पे, क्या बोला, कह रहा कि अहले सुन्नत ने बुखारी मुस्लिम में कुतुब सित्ता में अली रज़ी की रवायतें नहीं ली है, हसन रज़ी की रवायतें नहीं ली हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह की रवायतें ही नहीं ली हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये जाहिल आदमी सिर्फ करबला सुनता है तो कहाँ पता इसको? भाई बुखारी मुस्लिम में कुतुब सित्ता में अली रज़ी की रवायतें भरी पड़ी हैं, हसन रज़ी की रवायतें हैं, हुसैन रज़ी की रवायतें, सबकी रवायतें। लेकिन ये जाहिल है, इन लोग कभी पढ़ते नहीं है। भाई हम रोज आना शाम को इशा के बाद जो वित्र पढ़ते हैं, उसमें जो कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, अभी इन लोगों से पूछो पकड़ के करबलाइयों से कि किसने रवायत किया, नाम नहीं बताएंगे, जबकि इसके रावी हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तमाम सहाबे कराम में इकलौते रावी हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा सहाबा में किसी ने इस रवायत को बयान नहीं किया। ये दुआ कुनूत की जो दुआ है, उसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी के नवासे हसन रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया, जिस पर हमारा अमल पर डे होता है, हर दिन होता है। लेकिन इन करबला की किस्सा बयान करने वालों से पूछ के देखो, इनको नहीं मालूम कि दुआ कुनूत किसने सिखाई है, नहीं पता इनको। तो ये कारनामे अहले बैत की इनको नहीं मालूम, इनको सिर्फ खून खराबा की बात करते हैं। ये अहले बैत के साथ इंसाफ नहीं है, ये अहले बैत की सीरत नहीं है, ये अहले बैत की पूरी दीनी खिदमत नहीं है जिसे आप बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, उनकी जो दीनी खिदमत है, उनकी जो सीरत तैयबा है, उसको हम बयान करें, ताकि लोग उनकी ज़िंदगी को सामने रख के जो है उनके उसको उसवा अपनाएं और पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, कुरान और हदीस पर अमल करें। यही उनका मनहज था, यही उनका तरीका था, और इसी पे हमको चलना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने उसके मुताबिक अमल की तौफीक दे। तो नाज़रीन इकराम, ये था करबला का हादसा और उसका पस मंज़र सही हदीस की रोशनी में।
آپ سن رہے تھے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کو. آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل کا یہ کلپ تھا. آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل کا جو لنک ہے ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. آپ وہاں سے اس چینل کے آفیشیل جو چینل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.